चलो। Hello students, good morning. You are welcome to online class. Today we are learning about crop production and management. In previous class we studied about some topic of crop production and management. Today we are discuss about nitrogen cycle. It is very important topic for plant and animals. Students, nitrogen cycles you already know. In our atmosphere different type of gases are found. In the percent of nitrogen gas are present in our atmosphere is 78%. Oxygen 21% and other gas is 1%. You know the percentage of nitrogen is very high in our atmosphere. The main elements in the air is nitrogen. It is needed for the formation of protein, amino acid and nucleic acid. It is especially important plant life. Students, जो नाइट्रोजन है वह प्रोटीन के निर्माण में, अमीनो एसिड के निर्माण में और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में इसका यूज होता है. इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट प्लांट लाइफ. करें या मुख्य रूप से पेड़ पौधों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. इन आवर एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन आर प्रेजेंट. स्टूडेंट्स, our atmosphere have different type of gas: nitrogen, carbon dioxide, oxygen, sulfur, argon, neon, krypton, radon, xenon, etc. But the highest percentage of nitrogen 78%. Okay, there are 5 main processes of nitrogen cycles. Students, here the structure of nitrogen cycle: atmosphere, nitrogen in the air, nitrogen fixation bacteria in the soil, nitrogen fixing bacteria in the root of nodules, nitrates in the soil, animal protein, animal waste, decaying bacteria act on the dead remains of plant and animal waste. To students, 5 steps of the nitrogen cycles. First steps, नाइट्रोजन फिक्सेशन. स्टूडेंट्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है तो प्लांट और एनिमल में कैसे फिक्स होती है. तो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट हेडिंग जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड. करें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन गैस है वह नाइट्रोजन कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट होती है. लेग्यूमिनस प्लांट्स such as pea and soya beans have the nitrogen fixing bacteria rhizobium. Students, legume plants means ऐसे पेड़ पौधे जिनसे हमें दाल मिलती है. तो आप जानते होंगे दाल किससे मिलती है? pea and soya beans. करें इन पौधों की जड़ों के गांठों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरस एक बैक्टीरिया होता है
जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके फिक्स करता है। ओके स्टूडेंट्स, some others factor that fix the nitrogen of atmosphere into the soil, for example lighting, volcano eruption and forest fire are also help nitrogen change into ammonia। स्टूडेंट्स, एक तो बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरस, दूसरा जैसे लाइटिंग, वॉल्केनो इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर, ये सब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब नाइट्रोजन का हम यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? When nitrogen is fixed or stored in plants, tissue or plant proteins, this stored nitrogen passes from plant to herbivorous that eat the plants, and herbivorous transfer to the carnivorous because carnivorous eat herbivorous। This process of converting inorganic nitrogen compound into usable organic compound that are used by living organisms are called nitrogen assimilation। स्टूडेंट्स, जो प्लांट में नाइट्रोजन स्टोर है प्लांट टिश्यू में या प्रोटीन के रूप में, उससे प्लांट को हर्बिवोरस खाते हैं, तो वो प्रोटीन कहाँ पहुंच गए? हर्बिवोरस के बॉडी में। अब हर्बिवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, जैसे लायन टाइगर, ये हर्बिवोरस को खा जाते हैं। अब वो प्रोटीन ट्रांसफर हो गई किसमें? कार्निवोरस में। ये जो ट्रांसफर हो रही है कार्निवोरस में, जो यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रही है, इससे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है अमोनिफिकेशन। व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स आर डाइंग, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, द नाइट्रोजन कंपाउंड present in the air bodies, their bodies are decomposed and returned into the soil। Students, when plant and animals are dying, the nitrogen compounds are present in their body, they return into the soil, their body decomposed by a bacteria are decomposers। This process of conversion of complex organic compound like protein into ammonia is called ammonification। Students, प्लांट और एनिमल के शरीर में जो प्रोटीन्स है, जो नाइट्रोजन है, जब वो मर जाते हैं तो वो पृथ्वी में या तो उनको हम गाड़ देते हैं या फेंक देते हैं। वो डिकम्पोजर वहां जाकर के उनके शरीर को सड़ा गला करके मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। जो उनके शरीर में प्रोटीन है वो अमोनिया के रूप में कन्वर्ट होकर के मिट्टी में मिक्स हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? अमोनिफिकेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। स्टूडेंट्स, आप जान गए कि जब प्लांट और एनिमल्स मर जाते हैं, उन्हें हम मिट्टी में गाड़ देते हैं या फेंक देते हैं, तो उनके शरीर में जो प्रोटीन है वो अमोनिया के रूप में कन्वर्ट होकर के मिट्टी में सॉइल में मिक्स हो जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है नाइट्रिफिकेशन।
सम ऑफ दिस नाइट्रोजन, करें जो अमोनिया है वो कुछ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। सम ऑफ दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, करें जो अमोनिया है वह नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट होती है, कुछ पेड़ पौधे उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सम आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, करें सम आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, करें जो अमोनिया है उसको कुछ मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वह उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जब प्लांट और एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, द प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन इन देयर बॉडी और मिक्स are returned into the soil. This process of conversion of complex some of these nitrogen compounds are again absorbed by plant. Nitrification. जैसे जीव जब मर गए, मरने के बाद उन्हें मिट्टी में गाड़ दिए तो जो है उनका शरीर जो प्रोटीन है वह अमोनिया के रूप में कन्वर्ट होकर मिट्टी में मिक्स हो गया। अब जब हम नाइट्रिफिकेशन करते हैं तो वह अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ अमोनिया जो बची रहती है उसको जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसी विधि को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन यहां देख रहे हैं फिगर में स्टूडेंट्स, और यह अमोनिफिकेशन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस anaerobically where some of the nitrates are absorbed by the plants. करें यह प्रोसेस जो है वह एनारोबिकली है, इसमें कुछ नाइट्रेट्स को प्लांट के द्वारा absorb कर लिया जाता है and remains is converted back into nitrogen gas and referred to the atmosphere. करें इसमें जो है डेंट्रीफाइंग में कुछ तो प्लांट नाइट्रेट्स को प्लांट के द्वारा absorb कर लिया जाता है और जो बचती है उसे नाइट्रोजन के रूप में फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेंट्रिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, फूड obtained from animals. Students, plant give us food because plants are autotrophs. We take food from plants and animals, so we are heterotrophs. Students, plant give us food, plant like animal are give us food. Yeah, animals are provide us food. They food give us animals like milk yielding animals. Students, some animals give us milk. Cow, sheep, goat, buffalo, camels are give us milk. Milk is a complete food. Students, when we take 2 glass of water per day, our body are healthy. Students, we make different things from milk like ghee, butter, cheese, etc. Students, some animals are provide us meat and egg. Hen, sheep, goat, fish. स्टूडेंट्स, ये ऐसे एनिमल हैं जिनसे हमें एग और मीट प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ
food obtained from animals. Just like plant, animal also provide food to human beings. स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमको पेड़ पौधों से भोजन मिलता है, फल, साग, सब्जी, अनाज के रूप में, ठीक उसी तरह से हमको एनिमल से भी भोजन प्राप्त होता है, चाहे वह दूध के रूप में हो या मीट के रूप में हो या अंडे के रूप में। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, जैसे काऊ, sheep, goat, buffalo, camel, etc. Now, students, some animals are provide egg and meat, like goat, sheep, hen, fish. Students, honey is obtained from honeybee. Students, today the topic crop production and management are end. Now we meet next day, next topic. Okay, thank you.